हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਲੀਨੀਅਰ ਜਬਰਾ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬ ਸਪੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰਮ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰਮ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ W ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ VF ਇਜ਼ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ V if and only if first condition for all xy belongs to W, x minus y belongs to W, second if x belongs to W and alpha belongs to scalar field F, then alpha x belongs to W। ਇਹ ਜੇ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ W ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ x+y ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸਬਸੈਟ W ਜੇ ਉਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ x+y। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆ, ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਥਿਊਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ ਪ੍ਰੂਫ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ W ਕੀ ਆ? ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ W ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ, ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਆਫ VF। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੰਪਲਾਈਜ਼ W ਇਜ਼, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਦੈਟ ਇਜ਼, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਫਾਰ ਆਲ XY ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x+y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ। ਫॉर ऑल x belongs to W and for all alpha belongs to scalar implies alpha x belongs to W। ਇਹ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ W ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆਲਵੇਜ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਗਿਵਨ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਥੀਸ ਟੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਨਾਓ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ। XY W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ AB ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਵੇ। A ਐਂਡ B। ਨਾਓ ਇਹ ਫਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਫਾਰ ਆਲ XY ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ W 'ਚ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ -x ਵੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ y ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ -y ਵੀ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਐਕਸੀਅਮ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ XY ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x -y ਆਲਸੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਇਫ y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਨਾਓ x ਐਂਡ -y W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ
एंड बाय फर्स्ट एक्स प्लस माइनस वाई आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन सो विच इंपलाइज एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। लो जी ये अपना पार्ट प्रूफ हो चुकिया। नैक्सट हाँ जी ये फस्ट पार्ट प्रूफ हो गया। मैं एक बार फिर रिपीट करदा कि जे एक्स वाई असी डब्ल्यू सैट चो लए आ ना एंड डब्ल्यू की है सब स्पेस गिवन है। डब्ल्यू की है सब स्पेस है कहने का मीनिंग आ कि वो 10 प्रॉपर्टियां 10 एक्सियम सैटिस्फाई कर रहा जो वैक्टर स्पेस सैटिस्फाई करती है। तो वो हर एक एलीमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता एक्स का भी करता वाई का भी करता। वाई का इनवर्स की होएगा माइनस वाई सो दैट्स वाई माइनस वाई आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। दैन चूज दिस रिजल्ट विच इज़ गिवन जे ये गिवन आ तो उन्होंने चूज कर सकते हैं। सो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। जे इस चीज़ का तुसी रीज़न देना चाहोगे तो दे सकते हैं वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज़ वैक्टर स्पेस एक वैक्टर स्पेस है। सो इंपलाइज वाई माइनस वाई आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये असी रीज़न दे सकते हैं। दैन हुण सैकेंड पार्ट शो करांगे। सैकेंड पार्ट तो एज इट इज़ ही सेम ही है वही असी इस पार्ट में शो करना वो इस पार्ट भी गिवन भी आ तो शो भी यही करना। सो वो असी एज इट इज़ लिख देंगे। सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ इंपलाइज अल्फ़ा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू बाय सेकेंड फ्रॉम सेकेंड ये गिवन सी फ्रॉम सेकेंड ये सी फ्रॉम फस्ट। सो ये मैं दो रिजल्ट शो कर दिते कि जे सब स्पेस गिवन आ कि जे सब स्पेस गिवन आ डब्ल्यू की है सब स्पेस आ दैन ये कंडीशन भी होल्ड कर दी ये भी होल्ड कर दी। हुण इहदा असीं करांगे कन्वर्स पार्ट करिए उहदे च सब स्पेस शो करांगे तो गिवन होणगियां ये वालियां कंडीशनस। हुण कंडीशनस गिवन होणगियां तो शो करांगे सब स्पेस। हाँ जी कन्वर्स पार्ट नाउ लेट फॉर ऑल फर्स्ट गिवन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू इंपलाइज एक्स माइनस बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये रिजल्ट भी गिवन। सेकेंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ इंपलाइज अल्फ़ा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 हुण ये दोवें गिवन आ ये असी सपोज कर ले इस करके इन्होंने असी कहांगे ये गिवन आ। टू शो की करना टू शो डब्ल्यू इज़ सब स्पेस ये शो करना वैक्टर सब स्पेस शो करना असी ऑफ वी एफ। जो भी असी सब स्पेस शो करना तो वो की होना चाहिए 10 दियाँ 10 प्रॉपर्टियां सैटिस्फाई होनी चाहिए। 5 प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड 5 प्रॉपर्टी अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। और देखिए किमें सब तो पहला नाउ सब तो पहले टेक -1 बिलोंग्स टू लेट स्केलर की ले लिया असी -1 बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू इंपलाइज ये स्टैप यूज़ करांगे। फोर इंपलाइज क्योंकि गिवन है ये चीज़ गिवन है इनू यूज़ कर सकते हैं। अल्फा में -1 सपोज कर लिया सो -1 इंटू एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू फ्रॉम 4 नंबर इक्वेशन। सो इंपलाइज -x बिलोंग्स टू डब्ल्यू। देखो जे एक्स डब्ल्यू में बिलोंग करता तो वह इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। सो एडिटिव इनवर्स
ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है जी। सो जे मैं एक्स लेना तो इनवर्स माइनस एक्स, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी अंडर एडिशन असी होल्ड करा दी। नाउ दैन फिर असी देखिए, नाउ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू implies x minus y also belongs to w। reason same, because y belongs to w and y belongs to w। रीज़न की है ਇਹਦਾ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ x w ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ w ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੇ y w ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮਾਈਨਸ y ਵੀ w ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਚੂਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਥਰਡ। ਸੋ ਥਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x माइनस ऑफ माइनस y बिलोंग्स टू w बाय इक्वेशन नंबर थर्ड इंप्लाइज x प्लस y बिलोंग्स टू w। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन वो भी होल्ड होगी, इस क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन वो भी होल्ड होगी। नाउ फरदर दो प्रॉपर्टीज़ असी कर चुके हैं। जे मैं तुहानूं याद करावां, ए सी फोर्थ प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ए सी फस्ट प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नैक्सट हुण आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी करने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान नाल समझियो। नाउ अगेन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ऑल एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड हुणे शो किया कि माइनस एक्स आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू फ्रॉम दिस स्टैप। इफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू माइनस एक्स आल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड बाय यूजिंग, देखो वार वार इन्हों असी यूज़ करना, वार वार असी इन्हों ही यूज़ करना, जां इनू नहीं यूज़ करना तो हुण असी इनू यूज़ कर सकते हैं, बड़ी ईजीली यूज़ कर सकते हैं तुसीं। नाओ इहदा कोई नंबर पा लो, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 दिओगे तुसीं इनू। इक्वेशन नंबर 5 इंप्लाइज x प्लस माइनस x आल्सो बिलोंग्स टू w विच इंप्लाइज x माइनस x की हो गया जीरो एलिमेंट। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, सॉरी इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी गलत लिख देता, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट। सो एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, एलिमेंट एग्जिस्ट। तुहानूं याद होना ये किहड़ी प्रॉपर्टी हुंदी है, ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड भी एग्जिस्ट कर गई। तो मैं दस्सिया सी ये सेंसिटिव प्रॉपर्टीज़ आ जिन्होंने सानू शो कराना हुंदा। बाकी क्योंकि बाकी जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ आ, डबल्यू की है साडे कोल सबसैट आ, डबल्यू की है सबसैट आ, जे सबसैट आ वी दा कुछ प्रॉपर्टीज़ इदां दियां जिद्दां कम्यूटेटिव ला, एसोशिएटिव ला जां स्केलर मल्टीप्लीकेशन दी प्रॉपर्टीज़ आ जो वैक्टर स्पेस विच वो सारियां प्रॉपर्टीज़ सारे एक्सियम होल्ड करते आ, तो डबल्यू उहदा सबसैट आ। सेम एलीमेंट उही लै जो वैक्टर स्पेस दे आ, सो वो प्रॉपर्टीज़ ऑटोमैटिकली होल्ड करनियां ही करनियां क्योंकि एलीमेंट सेम आ वी च भी ते डबल्यू च भी। सो नाउ डबल्यू सबसैट ऑफ वी कहने मीनिंग आ all elements of W is also elements of V and V is vector space and V is vector space। तो vector space ਵਿੱਚ ਤਾਂ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ होल्ड करदियां।
फस्ट ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਫॉर ऑल एक्स वाई and z belongs to w implies x plus y plus z is equal to x plus y plus z for all x y belongs to w implies x y is equal to y x। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ। W ਵੈਕਟਰ ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਆ, ਹਜੇ ਸਬ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਬਸੈਟ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਮੋਡੇਟਿਵ ਲਾਅ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਏ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫਾਰ ਆਲ अल्फ़ा बीटा belongs to f and x belongs to w implies alpha plus beta x alpha x beta x। एक ये प्रॉपर्टी होगी। जो नंबर पाने तो पा सकते तुसीं इन्हां दे, नहीं पाने तो नहीं भी पा सकते। वैसे इनू असीं कहंदे हुंदे आ M2 प्रॉपर्टी, क्योंकि M1 तो असी ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ये असी प्रॉपर्टी ऑलरेडी कर चुके हैं। ये M1 प्रॉपर्टी सी, ये M2 प्रॉपर्टी है। M3 प्रॉपर्टी किहड़ी हुंदी है। M3 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू W implies अल्फा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स अल्फा वाई। And fourth property is for all alpha beta belongs to f and x belongs to w implies alpha beta x alpha beta x। ये भी होल्ड करेगी। एंड एक जी फिफ्थ प्रॉपर्टी M5 आ, फॉर ऑल 1 belongs to f implies 1 into x is equal to x। देखो हुण 10 ਦੀਆਂ 10 प्रॉपर्टियां हो गई। ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ A1 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਅਲਫਾ ਇਨਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ M1 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 4। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ A2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਥਰਡ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਫੋਰਥ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ A5 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਫਿਫਥ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੋਟੇਟਿਵ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਰਹੀ M1 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਦੈਨ M2 M3 M4 M5, 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ, W ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ W ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। ਜੇ ਇਹ 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆ। ਸੌਰੀ, ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆ ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬਸੈਟ ਸੀ ਵੈਕਟਰ, ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਬ ਸਪੇਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼। ਸੋ W ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਜ਼ ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਵਰਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬ ਸਪੇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ठीक है, किहदा सब स्पेस आ वैक्टर V ओवर F। ये सी थ्योरम। मैं एक चीज़ क्लीयर कर देवां, सब स्पेस विच जे ये जो ये एक्सरसाइज की असी फस्ट एक्सरसाइज ये जे कुछ जे इंपोर्टेंट आ एग्जाम कुछ आने वाला ये 4 थ्योरमां चो मैं तुहानूं करवाणियां। एक्सरसाइज के घट चांस होंगे एग्जाम च आने ये थ्योरम नंबर 1 दैन 2 दैन 3 दैन 4 ये बहुत इंपोर्टेंट आ, इन्हां दा श्योर हुंदा पेपर च आना। हुण थर्ड थ्योरम करन जा रहे हैं जिहड़ी कि फिर बहुत सिंपल इहदे नालों सिंपल होएगी वो। चलो लेट अस स्टार्ट। हाँ, साडी जो नैक्सट थ्योरम आ विच इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड सिंपल। The necessary and sufficient condition for non-empty subset W of vector space VF vector space VF to be subspace of V is that alpha x beta y belongs to W for all x y taken from vector subspace W and alpha beta from स्केलर। ये असी शो करांगे। सब तो पहले असी करांगे कंडीशन इज़ नैसेसरी प्रूफ ਇਹਦਾ नोट सोल्यूशन ਇਹਦਾ प्रूफ करन जा रहे हैं असी। बहुत सिंपल है। द कंडीशन इज़ नैसेसरी। कंडीशन इज़ नैसेसरी कहने का मीनिंग इत्थे असी सपोज करांगे लैट W बी सब स्पेस। सपोज कर लो W की है सब स्पेस ऑफ वैक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F। सब स्पेस शो कर लो, तो सपोज कर लो। तो तुहानूं ज़्यादा होना असी थ्योरम नंबर फस्ट विच शो करके आए हैं इंपलाइज की शो करके आए हैं फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू W इंपलाइज उन्हां दा सम आलसो बिलोंग्स टू W जिन्हों असी कहने की कहने क्लोज अंडर एडिशन। एक चीज़ होर पढ़ी आ ये सी फस्ट रिजल्ट साडा। ये फस्ट रिजल्ट सैकेंड रिजल्ट की सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट W एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F की सी इंपलाई अल्फा एक्स बिलोंग्स टू W। इक्वेशन नंबर सैकेंड ये गिवन है। ये की है गिवन है। गिवन तो तुसी कहोगे सर सब स्पेस ही जे सब स्पेस गिवन है तो असी ये शो कर रहे हैं फिर एक्स प्लस वाई W में बिलोंग करेगा, अल्फा एक्स भी W में बिलोंग करेगा। कहने का मीनिंग है W क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये गिवन है। शो की करना, शो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शो की करना वो असी हुण कर जा रहे हैं। नाउ बड़े ही ध्यान नाल समझना। लेट एक्स बिलोंग्स टू W एंड अल्फा बिलोंग्स टू F implies अल्फा एक्स बिलोंग्स टू W by इक्वेशन नंबर सैकेंड। बिल्कुल सही तुसी कहोगे। हाँ जी। अगेन फिर यही काम फिर दोबारा करांगे असी। अगेन y बिलोंग्स टू W जो ले लो वैक्टर y एंड बीटा बिलोंग्स टू F इंपलाइज बीटा y बिलोंग्स टू W। ये भी कित्थों आया स्टैप इक्वेशन नंबर सैकेंड कि जे असी एक वैक्टर ले लीए ये प्रॉपर्टी कह रही है एक वैक्टर ले लीए एक स्केलर ले लीए उन्होंने जी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो होंगी है क्लोज्ड। सो असी इनू इस तरीके कर सकते हैं। हाँ जी। उस तो बाद हुण बड़े ध्यान नाल समझो अल्फा एक्स बिलोंग्स टू W एज वेल एज बीटा वाई बिलोंग्स टू W। नाउ अल्फा एक्स एंड बीटा वाई बोथ बिलोंग्स टू W। ओके, बोथ बिलोंग्स टू W implies अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू W बाय फर्स्ट। बड़े ध्यान नाल समझो
ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੇ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, W 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ W ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਸਕੇਲਰ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। W ਕਲੋਜ਼ਡ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, W ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, W ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਬਾਏ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਵੀ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਫਰਦਰ। ਨਾਓ condition is sufficient. Condition is sufficient. Condition is sufficient. Now ਕੀ given ਆ, for all x y belongs to W and for all alpha beta belongs to F implies alpha x beta y belongs to W। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਜੀ ਗਿਵਨ, ਇਹ ਗਿਵਨ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੱਕ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦੋਗੇ 3। ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ W ਇਜ਼ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ VF। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ, x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਐਂਡ ਅਲਫਾ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਇਹ ਦੋ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਓ ਟੇਕ ਅਲਫਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਟੇਕ ਅਲਫਾ 1 ਐਂਡ ਬੀਟਾ -1। ਜੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੀਟਾ 1 ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ -1 ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ 1 ਭਰੋਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ x ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਲਫਾ 1 ਐਂਡ ਬੀਟਾ -1, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਇੰਟੂ x ਪਲੱਸ -1 ਇੰਟੂ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W which implies x minus y belongs to W। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਅਗੇਨ ਟੇਕ ਓਨਲੀ ਬੀਟਾ 0। ਜੇ ਬੀਟਾ 0 ਲਓਗੇ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਥਰਡ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਫਾ x ਪਲੱਸ 0 y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਫੋਰਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਫੋਰਥ ਨਹੀਂ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਲਫਾ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ W ਕੀ ਹੈ, ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰ ਆਲ x y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਕੀ ਇੰਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਫਾਰ ਆਲ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਅਲਫਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ F ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਲਫਾ x ਵੀ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੋਥ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਸੋ W ਇਜ਼ ਸਬ ਸਪੇਸ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਆਫ V ਓਵਰ ਫੀਲਡ F। ਇਹ ਸੀ ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ ਥਰਡ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ ਫੋਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਥਿਓਰਮ, prove that the intersection of two subspaces
W1 and W2 of a vector space VF is also subspace। देखो की गिवन आ कि ए भी सबस्पेस है, ए भी सबस्पेस है, शो करना कि इन्हां दी इंटरसैक्शन जो होएगी ना वो भी फिर सबस्पेस होएगी, जो भी कॉमन एलीमेंट होणगे वो भी सबस्पेस होएगी, ये असीं शो करांगे। सब तो पहलां तुहानूं इंटरसैक्शन दा मीनिंग पता होना चाहिए, जे नहीं पता तो मैं थोड़ा जिहा समझाउण दी कोशिश करदा, हो सकदा कई स्टूडेंट नूं ना पता होवे। सपोज करो एक मेरे को सैट आ, उहदे च सपोज करो चलो ए वाले एलीमेंट आ, एक बी सैट आ मेरे कोल जिहदे च मेरे कोल 2 4 6 इस टाइप दे मेरे कोल एलीमेंट आ, चलो 2 4 5 लिख लो। इंटरसैक्शन का की मीनिंग आ, इंटरसैक्शन च आने आ कॉमन एलीमेंट जिहड़े इहदे च भी होणगे ते इहदे च भी होणगे। हुण 1 इहदे च हैगा बट इहदे च नहीं हैगा, 2 इहदे च हैगा इहदे च भी हैगा, ये आएगा। 4 इधर हैगा इधर नहीं हैगा, ये नहीं आएगा। 5 आएगा, इहदे विच जो कॉमन एलीमेंट होणगे वो आउणगे। हाँ जी, एक गल ये भी है कि जो इंटरसैक्शन च एलीमेंट है ना वो इस सैट में भी बिलोंग करेगा, इस सैट में भी बिलोंग करेगा। जो 5 ये है तो 5 ये भी है तो ये भी है। जो इंटरसैक्शन होएगा ना जोड़ा एलीमेंट इदा लिखी दा, जे 2 बिलोंग्स टू ए इंटरसैक्शन बी च आ, पक्का गारंटी आ कि ये भी होएगा एंड 2 आलसो बिलोंग्स टू सैट बी। जो इंटरसैक्शन च आ गया वो ए च भी होएगा बी च भी होएगा, ये सी इंटरसैक्शन। तो ये हुण असीं रिजल्ट जिहड़ा ये प्रूफ करांगे, थ्योरम प्रूफ करांगे। एक थ्योरम रह जाएगी वो भी बहुत ही इंपोर्टेंट आ, वो सब तो इंपोर्टेंट थ्योरम आ, वो असीं अपने अगले लैक्चर च करांगे। हुण गिवन की आ W1 एंड W2 सब स्पेस आ। शो की करना इंटरसैक्शन नूं असीं शो करना कि वो भी सब स्पेस होएगा। टू शो W1 इंटरसैक्शन W2 बी सब स्पेस ए असी शो करांगे। नाउ जिन्होंने शो करना उहदे चों 2 एलीमेंट उठाने, 2 वैक्टर 2 स्केलर। लेट एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू W1 इंटरसैक्शन W2 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड F implies ये असी एलीमेंट चूज़ कर ले। 2 असी स्केलर ले, ये आप बाद भी लिख लाँगे, कोई गल नहीं। एक्स वाई 2 एलीमेंट लै इंटरसैक्शन चो। हुण जे एक्स एलीमेंट इंटरसैक्शन च आ, इहदा मीनिंग ये आ कि एक्स बिलोंग्स टू W1 एज वैल एज एक्स बिलोंग्स टू W2, दोवां च ही होएगा। इदा ही कि जे वाई W1 इंटरसैक्शन W2 नूं बिलोंग करदा, उहदा मीनिंग की होएगा वाई बिलोंग्स टू W1 एज वैल एज वाई बिलोंग्स टू W2। जिवें कि मैं पहले एग्जाम्पल नाल समझा चुके हैं, जो इंटरसैक्शन च आ वो दोवां सैट च ही होएगा। हुण बड़े ध्यान नाल समझिओ, टेक अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, ये स्केलर्स हो गए साढ़े, ये स्केलर्स हो गए। हुण बड़े ध्यान नाल समझिओ, ये देखो बड़े ध्यान नाल देखो, एक्स वाई बिलोंग्स टू W1, एक्स वाई बिलोंग्स टू W1, एक्स नाउ as x y both belongs to W1 and अल्फा बीटा स्केलर लै चुके हैं असी। इहदा मीनिंग ये होया अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई आलसो बिलोंग्स टू W1। रीज़न की आ क्योंकि W1 गिवन आ इज़ सब स्पेस, ये सब स्पेस गिवन है। जो सब स्पेस गिवन है, असी थ्योरम नंबर 3 यूज़ कर सकते हैं। ये वाला रिजल्ट अगेन फिर एक बार दोबारा करांगे। अगेन
ਇਹਦੀ ਕਰ ਦਈਏ ਪੈਕਿੰਗ। ਓਕੇ, ਹੁਣ एक्स वाई आल्सो बिलोंग्स टू W2। आ देखो एक्स कोमा वाई आल्सो बिलोंग्स टू W2 एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F implies अल्फ़ा एक्स बीटा वाई बिलोंग्स टू W2। क्यों? क्योंकि W2 इज़ सब स्पेस ए भी गिवन है, ये भी की सी गिवन है। हुण दो पैक किए हुए बॉक्स चुक लो, यही एलीमेंट W1 च आ, उही सेम एलीमेंट W2 च भी आ। ਇਹਦਾ ਕੀ मीनिंग होया? वो इंटरसैक्शन ਨੂੰ भी बिलोंग करता। बड़े ध्यान नाल समझिओ, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जे इक्वेशन नंबर पानी है तुसीं पा सकते हैं, बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा एक्स बीटा वाई आल्सो बिलोंग्स टू W2। दोवां नूं ही बिलोंग करता, दोवां नूं ही बिलोंग करता। ਇਹਦਾ ਕੀ मीनिंग ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ मीनिंग ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि अल्फा एक्स बीटा वाई बिलोंग्स टू इंटरसैक्शन। यही तो असीं शो करना है कि जे अल्फा की शो करना हुंदा, सो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, इत्थों चले सी असी, फिर असी की लिया नाल लै स्केलर, स्केलर दी लई हैल्प, तो शो की करा दिता असी? शो ये कराता अल्फा एक्स बीटा वाई बिलोंग्स टू दिस इंटरसैक्शन। जे अल्फा एक्स बीटा वाई इस इंटरसैक्शन में बिलोंग करता तो असी की कह सकते हैं? सो इंटरसैक्शन W1 एंड W2 इज़ सब स्पेस। यही असी शो करना सी। मैं एक बारी होर समझाना चाहूँगा, बड़े ही ध्यान नाल समझिओ। इज़ सब स्पेस, इज़ सब स्पेस। मैं एक बारी होर समझाना चाहूँगा। देखो, जिन्हों शो करना सब स्पेस वो लवांगे दो एलीमेंट। मैं एक्सरसाइज तां पहले करवाई सी कि तुहानूं सारा प्रोसैस पता चल जाए कि शो किस तरीके करीदा। उस चों कोई दो एलीमेंट चूज़ किए, जो इंटरसैक्शन च आ तो वो W1 च भी होएगा, एक्स W2 च भी होएगा, इधे वाई इहदे च भी होएगा, उहदे च भी होएगा। पहले इदां उठा लो, W1 के एलीमेंट किहड़े आ? एक्स वाई बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा बीटा असी लै स्केलर, तो W दिता होया सब स्पेस। जो सब स्पेस आ तो वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इदां फिर ये वाले एलीमेंट उठा लो, एक्स वाई W2 नूं बिलोंग करते, अल्फा बीटा स्केलर आ, क्योंकि W2 की है सब स्पेस है, इस करके अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई W2 नूं बिलोंग करेगा। सेम एलीमेंट ये भी आ, ये भी है, इस करके इंटरसैक्शन में बिलोंग कर जाएगा, कर जाएगा। इत्थे भी तुसीं जे आ काम इन्ना नहीं भी करना, कोई गल नहीं, तुसीं इत्थे भी कह सकते सी W1 इंटरसैक्शन W2 की है सब स्पेस। बट पूरी प्रॉपर डेफिनेशन बनाने लिए कि दो एलीमेंट लै जी इंटरसैक्शन चो, अल्फा बीटा स्केलर लै, अल्फा एस बीटा वाई उस इंटरसैक्शन में बिलोंग कर गया, इस करके वो की हो गया? सब स्पेस हो गया। सो ये नाल ये थ्योरम भी अपनी कंप्लीट हो जाती है। इस थ्योरम का नंबर है जी 4। ये सी थ्योरम नंबर 4। हुण एक थ्योरम नंबर 5 आ, विच इज़ लास्ट वन। वो की है, मैं हिंट दे जावां थोड़ा जिहा कि असीं ये शो किया कि इंटरसैक्शन भी सब स्पेस हुंदी है, बट यूनीअन नहीं हुंदी। हमेशा हुंदी आ, कई केसिस विच हुंदी होएगी, बट हमेशा नहीं हुंदी। किस कंडीशन च कदों हो सकती सब स्पेस? सपोज करो मेरे कोल एक सैट, एक सब स्पेस ए आ, एक सब स्पेस बी आ। ओके, ए यूनीअन बी ऑलवेज सब स्पेस नहीं होएगी, होएगी बट कदों होएगी वो असी शो करना। कदों हो सकती आ? वैन ए कंटेंड इन बी और बी कंटेंड इन ए। ये कंडीशन आ, ये असी शो करांगे कल। यूनीअन ऑलवेज सब स्पेस नहीं हुंदी, कदों हुंदी आ? आइदर ए कंटेंड इन बी और बी कंटेंड इन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, मैं हुणे दस देवां, ये तो श्योर ही आ पेपर च आनी थ्योरम, सब तो इंपॉर्टेंट थ्योरम आ। इस करके नैक्सट लैक्चर तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट आ, उन्होंने तुसीं चंगी तरह समझिओ, देखियो। जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वो भी सबसक्राइब कर लो, तो वीडियो में तुसीं लाइक बहुत घट करते हो, यदा मतलब तुहानूं समझ नहीं आ रही। तो जे तुहानूं ठीक लग रहा होवे तो तुसीं लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करियो। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा उन्होंने स्टूडेंट का, उन्होंने सबसक्राइबर्स जिहड़े जिन्होंने सबसक्राइब किया मेरा चैनल, कि मेरे 1K सबसक्राइबर करने के लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। इदां ही करते रहो, इदां ही आपां थोड़ा होर अगे वधीए।
ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕਸ ਆ ਉਹ BSc ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਰੋਲ ਆ ਉਹ BSc ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਨਾਓ ਲੀਨੀਅਰ ਅਲਜਬਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਪਰੋਪਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡੀ ਗਿਆ। ਬਟ BSc ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਚਾਹੇ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ, ਚਾਹੇ ਲੀਨੀਅਰ ਅਲਜਬਰਾ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਮੈਥਡ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।